Hello everyone, welcome back. In the previous lecture, we have discussed one of the most important, the lymphatic system. Today we will be discussing about the human circulatory system. So now let's start with the human circulatory system. So dear students, human circulatory system have three main components. One is the blood, one is the blood vessels, and the third one is the pumping organ heart. Okay, so today in this class only we will study the first component of human circulatory system, which is blood. Okay, so now we are going to start with the blood. So blood, as you know, blood is a component of human circulatory system. So what is blood? So dear student, blood is simply a fluid connective tissue. So how you will write it? So blood is what? Blood is a fluid connective tissue which flows in blood vessels. These vessels, I am using here the word vessels. So vessels are the tubes through which this blood will flow. Okay, and an adult means, or you may say an average human being contain 5.5 liters of blood. Okay, and a human being contain an average of about 5.5 liters of blood. Okay, and it is 7 to 8% of total body weight. Okay, and as you know, blood is red in color in human being. Why? Due to the presence of hemoglobin pigment. So red color of blood is due to the presence of hemoglobin. Okay, and the study of blood, as we are saying that it is red due to presence of hemoglobin. So study of blood is called hematology. Logy stands for, as you know, logy means study and hem for blood. So hematology is the study of blood. Okay, again I am repeating, blood is a fluid connective tissue which flows along the blood vessels, and an average adult human being contain 5.5 liters of blood, and then we have studied it is present 7 to 8% of the total body weight. Then blood is red in color generally due to the pigment named hemoglobin. And the last we have discussed, the study of blood is called hematology. And further, blood have two components. So now let's start with the components of blood. Now let us talk about the components of blood. So blood have mainly the two components. This is the blood, and components of blood are two. One is the plasma and the second one is the blood corpuscles. Corpuscles or cells. Okay, तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा is the liquid part of blood. Firstly, we will talk about the first component of blood, which is plasma. So plasma is a liquid part of blood. Okay,
अब प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो कंपोजिशन में हम क्या कहते हैं, लेट अस टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ दिस प्लाज्मा। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 92% जो होता है दैट इज वाटर। प्लाज्मा किससे बनी होती है, 92% ऑफ वाटर, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स, और यू में से डायरेक्टली द प्रोटीन्स और द प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड रेस्ट 1 to 2% क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड हॉर्मोन्स। तो कंपोजिशन में क्या था, मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एंड 1 to 2% क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड हॉर्मोन्स। अब हम कहते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर वाटर कहाँ से आता है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, लिटिल अमाउंट और कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या आता है, वाटर, तो वाटर कम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। अब प्रोटीन्स जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन बनते हैं मेनली लीवर के अंदर। प्रोटीन दे आर फॉर्म्ड इन लीवर। अब डियर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये भी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप्स के होती हैं। वन इज द एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज द ग्लोब्यूलिन, एंड द थर्ड वन इज द फिब्रिनोजन। ओके, हमने कहा 6 to 8% जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। वाटर तो डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है, और प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है इन द लीवर। अब ये प्रोटीन बेसिकली 3 होते हैं। वन इज द एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज द ग्लोब्यूलिन, एंड द थर्ड वन इज द फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन का अमाउंट जो लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। एल्ब्यूमिन करता क्या है, एल्ब्यूमिन वाटर को रिटेन करता है, कहाँ, ब्लड के अंदर। और यू में से कि ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस वर्ड किससे रिलेटेड है, वाटर की मूवमेंट से। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, रिटेन वाटर इन ब्लड। और ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, इसको हम एंटीबॉडीज भी कहती हैं। तो ग्लोब्यूलिन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। Globulin is also termed as antibodies and it prevent us or protect us from infection. फिब्रिनोजन क्या करता है, आपको पता है कि हमने कहा कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है। और सपोज अगर हमें कोई भी कट लग जाता है तो आप क्या करो, सपोज मेरे यहाँ आम पे कट लग गया है तो क्या होगा, अगर ये प्रोटीन फिब्रिनोजन नहीं होगा तो वो ब्लड कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, फ्लो करेगा। फिर मैं अपनी आर्म को ऊपर करती हूँ, नीचे कैसे भी करूँ तो ये क्या है, ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। तो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, दिस फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो फिब्रिनोजन का क्या रोल हुआ, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ओके, तो नेक्स्ट हमें बताएं 1 to 2% न्यूट्रिएंट्स होती हैं, गैसेस होती हैं एंड
हॉर्मोन्स होती हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच इज प्लाज्मा. नाउ लेट अस टॉक विद द second component which is the blood corpuscles. As we know blood plasma जो होता है लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का. और सपोज अगर मैंने ये एक सेल ड्रॉ किया है तो इस प्लाज्मा के अंदर जो सेल होते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर सेल्स एम्बेडेड होती हैं. तो सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इनटू द प्लाज्मा. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेकंड कंपोनेंट which is blood cells. Now let us start with the second component of blood. So this is the second component of blood which is the blood cells. तो blood cells क्या होती हैं? blood cells मैंने अभी आपको बताया था, they are suspended और इनमें से embedded in the plasma. अब ये क्या करती हैं? ब्लड का 45% बनाती हैं. हमने कहा था कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा फॉर्म द 55% ऑफ ब्लड. और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितना फॉर्म करती हैं? 45%. और जनरली जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ फॉर्म होती हैं? देयर फॉर्मेशन इज इन द रेड बोन मैरो. Okay, so these blood cells, they are simply of three types as you have studied in your previous classes also. So these are same. So first one is the red blood cell, second one is the white blood cells, and the third one is the platelets. Now what is the red blood cells? So as I have drawn here a table which is representing the difference between these three blood cells. So first is the red blood cell. तो शेप क्या होती है जनरली रेड ब्लड सेल की? इट इज डिस्क शेप. डिस्क शेप यू मीन कि ये सेंटर से क्या होता है? फ्लैट होता है और पेरिफ्री पे एट बोथ द पेरिफ्री इट इज राउंडेड. अब डिस्क शेप जो रेड ब्लड सेल का क्या बेनिफिट होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो enucleated. Enucleated student means having no nucleus. Okay, and the third one is an human being contain an average of 5 to 5.5 million per millimeter cube of red blood cells. And function आपने पढ़ा, हमने कहा कि आरबीसीज का देखो कलर क्या होता है? नेम इंडिकेट कर रहा है रेड. तो रेड कलर जो होता है, ये रेड कलर के सेल्स नहीं होते हैं, इनमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है विच इज नेम्ड एज हीमोग्लोबिन. तो दैट हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रोवाइड द रेड कलर टू दिस रेड ब्लड सेल्स. एंड द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन. रेड ब्लड सेल क्या करता है? हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उसको क्या करता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है. तो ये हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है? आरबीसीज का. तो जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होगा वही फंक्शन किसका होगा? हमारे आरबीसीज का. तो आरबीसीज क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. कहाँ से? लंग्स से. और कहाँ लेके जाती हैं? टू द अदर पार्ट. और सिमिलरली CO2 को कहाँ से कैरी करती हैं? फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. और उसको कहाँ ट्रांसफर करती हैं? टू द लंग्स फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज द लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन का मतलब इनका क्या आप कह सकते हो? लाइफ पीरियड क्या है? कितने टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं? तो इनका जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है वो होता है डियर 120 डेज. अब आप लोगों ने सुना होगा कि हम क्या कहते हैं जनरली कि वी शुड डोनेट ब्लड. ब्लड डोनेट करने से कोई भी हार्म नहीं होता है. क्यों हार्म नहीं होता है? क्योंकि डियर 1 डे के अंदर 3 मिलियंस जो आरबीसीज होती हैं वो क्या होते हैं? डाई होती हैं. बट क्या होगा? सेम डे में जितने डाई हुए, मैंने आपको क्या बताया है कि 3 मिलियंस जो होती हैं सेल्स,
3 मिलियन आरबीसीज जो हैं वो डाई होती हैं, पर होता क्या है सेम टाइम पे इसका 4 टाइम्स यानी कि 4 × 3 यानी कि क्या हुआ 12 मिलियन आरबीसीज जो होती हैं वो न्यू डेवलप होती हैं कहाँ, इन द बोन मैरो. दैट्स वाई देयर इज नो हार्म इफ वी डोनेट blood. Okay, so I think so we should donate blood because if 3 million RBCs die, then 4 times of the same RBCs they generate in the bone marrow. Okay, so this was all about the RBCs, which is red blood cell. And one thing more, other name of RBCs is erythrocyte. इराइथ्रोसाइट. इराइथ्रो जो वर्ड है वो रेड के लिए होता है, तो आरबीसीज का अदर नेम क्या हुआ, इराइथ्रोसाइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड ब्लड सेल विच इज द वाइट ब्लड सेल. तो अगर ये वाइट है इट मीन्स इसका कोई कलर नहीं है, तो ये आपको नेम इंडिकेट करता है कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, जनरली कलरलेस. इनकी जो शेप होती है वो अमीबॉइड शेप होती है. ओके, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. न्यूक्लिएटेड का मीनिंग क्या होता है, हैविंग न्यूक्लियस. आरबीसीज डियर हमने स्टडी किया, आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, हैविंग नो न्यूक्लियस, वाइल डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, न्यूक्लिएटेड, हैविंग न्यूक्लियस. मैंने अभी आपको बताया नेम इंडिकेट कर रहा है, तो दीज आर द कलरलेस सेल्स. इनका जो नंबर होता है जनरली ह्यूमन बीइंग में वो क्या होता है 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब. ठीक है, इसके आरबीसीज के कंपैरिजन में इसका जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है. अब सेकेंड क्या होता है, बट चिल्ड्रन के केसेस में क्या होता है, अडल्ट के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसीज का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, मोर देन फंक्शन. अब डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज फॉर्म करती हैं. एंटीबॉडीज क्या करती है, एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. 9th क्लास में आप लोगों ने इम्यूनिटी स्टडी किया था, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. ओके, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और आप ये भी कह सकते हो इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन. ओके, हम इनको क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. एंड ऑल्सो देयर सेकेंड नेम इज ल्यूकोसाइट्स. तो डियर ल्यूको वर्ड जो होता है कलरलेस को इंडिकेट करता है, हम इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स. ओके, इनका जो लाइफ स्पैन होता है जनरली वो होता है 1 to 4 days. Okay, so this was all about the WBCs, which is white blood cells. Now let us talk about the third blood cell, which is the platelets. Platelets क्या होते हैं डियर, जनरली ओवल शेप्ड होते हैं. ओवल मीन्स ये कैसे अपीयर होते हैं, लाइक द स्पिंडल्स, स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, स्पिंडल के जैसे अपीयर होती हैं. एज लाइक in case of RBCs they also do not have nucleus. Okay, and also platelets they are colorless. अब जो लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का वो क्या होता है 3 to 7 days. ओके, और प्लेटलेट्स का अमाउंट क्या होता है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब. अब आपको पता है डियर इट मीन्स क्या हुआ कि 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है. आप लोग मैथ्स में स्टडी करते हो तो रेड ब्लड सेल का अमाउंट कितना हुआ जनरली 50 to 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, और ये कितना है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब. अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हेल्प करती हैं, मैंने आपको अर्लियर भी बताया, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में. मीन्स ये क्या करते हैं आपके इंजरी को हील कर देते हैं. अर्लियर कैसे, बाय फॉर्मिंग द ब्लड क्लोट. नाउ वी विल टॉक अबाउट
simply that how blood clot formation occurs. Okay, now we will study that how blood clot formation occur. तो मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में जनरली कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स. अब हम स्टडी करेंगे कि ब्लड क्लॉट फॉर्म होता कैसे है. तो हमें पता है कि सपोज हमें कहीं भी इंजरी होती है तो वो जो इंजर्ड टिश्यू है, ब्लड प्लेटलेट्स उसके साथ क्या करेगी, उस सरफेस पे रीच करती है. ओके, और क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन रिलीज करती है. ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को ब्रेक करता है थ्रोम्बिन के अंदर. अब ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है तो आपको पता है प्रोटीन जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, प्लाज्मा के अंदर. तो मैंने यहाँ लिखा है प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन. जैसे ही प्लेटलेट्स इंजर्ड, सपोज कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू के सरफेस पे जैसे ही प्लेटलेट पहुंचता है तो ये क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को ब्रेक करता है थ्रोम्बिन में. अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, अगेन फिब्रिनोजन प्रोटीन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है. अब ये फिब्रिन क्या करेगा, हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो किस में इंट्रैप्ड होता है, फाइबर में. तो नेटवर्क ऑफ फाइबर जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेड ब्लड सेल्स में. तो जो नेटवर्क ऑफ फाइबर इंट्रैप्ड होता है रेड ब्लड सेल्स के साथ, वो इस फिब्रिन के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म कर देता है, ब्लड क्लोट. आप देखते हो कि वहाँ क्या होता है, जनरली सपोज जैसे कोई स्पॉट है तो यहाँ ये ऐसे क्लोट सा बन जाता है और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप. तो इस वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होती है. अगेन डियर आई एम रिपीटिंग कि इंजर्ड टिश्यू क्या करता है, इंजर्ड टिश्यू के सरफेस पे ये प्लेटलेट्स रीच करती हैं और क्या रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन. वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करता है थ्रोम्बिन में. और थ्रोम्बिन क्या करती है, फिब्रिन फॉर्म करती है. वो फिब्रिन आरबीसीज में ट्रैप्ड फाइबर के साथ कंबाइन करती है और क्या फॉर्म करती है, ब्लड क्लॉट. ओके, सो अगेन स्टूडेंट टेक अ रिकैप. टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्टली blood. That blood have two component, one is plasma. So plasma we have studied what are the components of plasma. Okay, and then we have discussed the second component of blood which is blood corpuscles, and after then we have studied the difference between RBCs, WBCs and the platelets. And finally, in the last topic, we have discussed about the blood clot formation. With this again, thanks to all.